Good morning, students. Welcome back to Sri GM Nunda e-learning class. I'm your English teacher Priyanka Srivastav, and today we are going to study chapter number 6, Going to Sleep by author Charles Habercluck. Students, before going to your textual exercise, let me tell you the summary of the story in short. The main characters in this story are Mr. and Mrs. Fogg, his aunt, their baby, and the neighbor's cats. The whole story revolves around Mr. Fogg, who makes tremendous effort to fall asleep. In this story, Mr. Wilberforce Fogg tried very hard to make himself sleepy, but he just could not. Then he thought of using a trick that he had read in a book once. He started imagining that he saw a lot of sheep jumping over a high fence and counted them as they jumped. When he made his first attempt, he reached counting his 140th sheep and started to doze off. But suddenly his wife said to him that she thinks the yellow hen wants to lay eggs. His attempt to fall asleep was failed. Next he made a second attempt and reached his 120th sheep. He was about to fall asleep, but their baby began to cry, and thus his second attempt was failed. Then he started his third attempt and reached the 64th sheep. At that time, his aunt knocked on the door to ask him if he had closed the back door. This way, the third attempt to fall asleep failed. Next, he made a fourth attempt and reached 240th sheep. He was nearly asleep, but then his neighbor's cat started fighting loudly, and his attempt again failed. He threw anything he could find in the room, like boots, soap, dish, comb, plate, brush, anything, at the cats. Finally, it seemed silly to continue counting sheep again and again, but Mr. Fogg wanted to try one last time. This time, his trick nearly worked. After imagining the 80th counting, second sheep jumped over the fence. He was asleep. Unfortunately, his wife rolled out of bed and fell on the floor with a loud thud. With that, their baby woke up again and started crying loudly. Thus, the last attempt too failed. At the end, the Mr. Fogg simply grabbed the pillow and went to the sofa in the sitting room and lay down there. Soon he fell asleep. Finally, when he woke up the next morning, he was quite sure that counting sheep could not help anyone to sleep. Friends, this is how Mr. Fogg tried many times to fall asleep, but he was failed. So now let's understand the story according to your textbook. So open the page number 55 of your Canopy textbook. Mr. Wilberforce Fogg tries his best to fall asleep one night, but he just cannot because of all the things that happen around him. Read on to find out if he is able to fall asleep in the end. स्टूडेंट्स, गोइंग टू स्लीप जो चैप्टर है, उस चैप्टर की स्टोरी में ये पूरा स्टोरी मिस्टर विल्बरफॉक्स पर डिपेंड है, क्योंकि मिस्टर विल्बरफॉक्स फॉग जो है वो एक रात को सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है और वो बार बार सोने की कोशिश करते हैं, पर वो फेल हो जाते हैं. क्या वो आखिरी में सो पाते हैं कि नहीं, इसकी ये स्टोरी हम पूरा चैप्टर रीड करेंगे तभी हमें पता चलेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. One night, Mr. Fogg was not able to sleep. He tried very hard to make himself sleepy,
बट ही जस्ट कुड नॉट। एक रात को मिस्टर फॉग जो है वो सोने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर वो सो नहीं पा रहे थे। देन ही रिमेंबर्ड समथिंग दैट ही हैड रीड इन अ बुक वंस। इट वॉज अबाउट अ मैन हु कुड नॉट स्लीप। द मैन इन द बुक had managed to fall asleep by imagining that he saw a lot of sheep jumping over a fence and by counting them as they jumped. अब जैसे कि मिस्टर फॉग को नींद नहीं आ रही है, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं सोने की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो फिर अचानक से उन्हें एक बात याद आती है कि उन्होंने एक बुक में पढ़ा है कि एक मैन था जिसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने अचानक से सोने के लिए वो ऐसे इमेजिनेशन करने लगा कि उसे बहुत सारे शिप दिखाई दे रहे हैं और वो जंप कर रहे हैं, फेंस ओवर क्रॉस कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो शिप जंप कर रहे हैं वन बाय वन, वो उसे काउंट कर रहा है और ऐसे काउंटिंग करते करते वो सो जाता है ऐसे। तो आई विल ट्राई डैट, ही सेड टू हिमसेल्फ। सो ही क्लोज्ड हिज आइज एंड इमेजिन शिप जंपिंग ओवर अ हाई फेंस एंड बिगन टू काउंट। सो यहाँ पर मिस्टर फॉग ने भी डिसाइड किया कि वो भी इसी तरह उस मैन की तरह वो भी शिप्स को काउंट करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अब करूँगा, तो वो आंखें बंद करके वो शिप्स को इमेजिन करने लगे और ऐसे सोचने लगे कि शिप्स मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं और वो जंप कर रहे हैं। तो वो जैसे जैसे वो शिप्स वन बाय वन जंप कर रहे हैं तो वो उन्हें काउंट कर रहे हैं। When he reached his 140th sheep, he started to doze off. Suddenly, Mrs. Fogg said, Wilberforce, I think the yellow hen wants to lay eggs. तो यहाँ पर मिस्टर फॉग ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी है और यहाँ वो 140th काउंटिंग पर पहुंचे हैं और उन्हें नींद आने ही वाली थी। तो अचानक से मिसेस फॉग यानी कि उनकी वाइफ ने अचानक से उन्हें जगाकर बोला कि उनको ऐसा लग रहा है कि येलो हैन जो है वो अंडे देने वाली है, मीन्स इज गोइंग टू ले देयर एग्स। तो ऐसा कहकर वो उसने मिस्टर फॉग को जगा दिया। स्टूडेंट्स, टर्न द नेक्स्ट पेज। ओ डोंट ट्रबल मी विथ सच थिंग्स नाउ, डू कीप क्वाइट एंड गो टू स्लीप, सेड मिस्टर फॉग। तो जैसे मिसेस फॉग ने उन्हें जगा दिया था, तो यहाँ पर मिस्टर फॉग ने उन्हें गुस्से में मतलब कहा कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए और चुपचाप सो जाओ। क्वाइट इरिटेटेड, ही वेंट बैक टू हिज शीप अगेन। ही काउंटेड एंड गॉट अप टू 120 sheep. He was about to fall asleep when the baby began to cry. अब फिर से सोने की कोशिश करने के लिए वो फिर से शिप को काउंटिंग करने लगे और काउंट करते करते वो 120 शिप पर पहुंचे थे और उन्हें नींद आने ही वाली थी। तो फिर अचानक से छोटा जो बेबी जो मिस्टर फॉग का है वो रोने लगा। बी क्वाइट, मिस्टर फॉग साउटेड। He asked Mrs. Fogg to tend to the baby and to put her to sleep. When Mrs. Fogg had finally put the baby to sleep, Mr. Fogg decided to try counting his imaginary sheep again. अब यहाँ पर बेबी जग गया था तो मिस्टर फॉग ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि चुप हो जाओ और मिसेस फॉग को कहा कि प्लीज़ ये बेबी को ज़रा संभालो और इसे चुप करवाओ और इसे सुला दो। और मिस्टर फॉग जब मिसेस फॉग ने मतलब फाइनली जब बेबी को चुप करवा दिया, तब मिस्टर फॉग ने डिसाइड किया कि वो फिर से सोने की कोशिश करेंगे और फिर से शिप काउंटिंग करेंगे और इमेजिनिंग करने लगेंगे शिप को। तो वो वापस दोबारा सोने की कोशिश करने लगे और शिप्स काउंटिंग करने लगे। ही हैड जस्ट फिनिश्ड काउंटिंग द 64th sheep when his aunt knocked on the door and asked if he was awake. She said that he had forgotten to close the back door. She thought she had heard thieves in the backyard. अब जैसे ही थर्ड टाइम जब मिस्टर फॉग ट्राई कर रहे थे सोने की, वो शिप काउंटिंग कर रहे थे और 64th
शिप काउंटिंग पर पहुंचे थे तब अचानक से किसी ने डोर नॉक किया, और डोर नॉक किसने किया? आंटी ने। तो आंटी ने इसलिए डोर नॉक किया कि वो चेक कर रही थी कि क्या ये लोग जगह है कि नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि पीछे का जो बैक दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। तो वो उस मिस्टर फॉग को जगाकर उन्होंने पूछा कि बोला कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पीछे की तरफ कुछ चोर वोर आए हुए हैं। तो मिस्टर फॉग गॉट अप फ्रॉम द बेड इन एंगर एंड वेंट डाउन टू चेक। ही फाउंड द डोर फर्मली क्लोज्ड। अब परेशान होकर मिस्टर फॉग गुस्से में आकर उठे और उन्होंने जाकर अपना डोर चेक किया पीछे का, तो देखा तो डोर जो था वो बंद था। ऑन रिटर्निंग टू हिज रूम he decided to count sheep one more time. This time he reached 240 sheep. अब डोर चेक करने के बाद जब रिटर्न होते हैं अपने रूम में मिस्टर फॉग, तो वो डिसाइड करते हैं कि चलो एक और बार मैं फिर से शिप काउंट करता हूँ। अब ये कितनी बार हो गया? 4th टाइम हो गया। तो यहाँ पर फिर से वो ट्राई करने लगे और शिप काउंटिंग करने लगे। दिस टाइम ही रीच टू 240 sheep. He was nearly asleep when the neighbor cat started fighting loudly. तो जैसे ही फिर से वो सोने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें नींद आने ही वाली है, तब तक थोड़ी देर में नेबर की जो कैट्स है वो जोर जोर से चिल्लाकर एक दूसरे से फाइट करने लगी। Students, now move on to the next page. Fogg was very upset. He leaped out of bed and went to the window. He began to throw anything he could find at the cats. His boots, his sharp disc, comb, plate, brush and so on. अब यहाँ पर मिस्टर फॉग जो बार बार सोने की कोशिश कर रहे थे, शिप काउंटिंग कर रहे थे और बार बार कोई ना कोई उन्हें किसी न किसी वजह से उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे। सोने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। तो यहाँ पर लास्ट टाइम जब वो ट्राई कर रहे थे तब वो अचानक से नेबर की जो कैट्स थी वो एक दूसरे से फाइट कर रही थी, जिस वजह से बहुत आवाज़ आ रहा था और मिस्टर फॉग जग गए थे। और इसी वजह से वो गुस्से में आकर उनके बेडरूम में जो भी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी वो विंडो के बाहर कैट्स पर थ्रो करने लगे, जैसे कि बूट्स, शॉप, डिस्क, कॉम, प्लेट, ब्रश और सो ऑन। फाइनली he managed to get the cats to go back inside and remain silent. It seemed silly to continue counting sheep again, but Mr. Fogg wanted to try it one last time. फाइनली जब मिस्टर फॉग ने कैट को भेज दिया वापस, मतलब भगा दिया और ज़रा एटमॉस्फेयर शांत हो गया, तब फिर से मिस्टर फॉग सोचने लगे कि लास्ट टाइम फिर से मैं ट्राई करता हूँ शिप काउंटिंग करने की, क्योंकि वो मिस्टर फॉग सोना चाहते थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। डेट्स वाई वो बार बार ट्राई कर रहे थे और उस बार उन्होंने सोचा कि वन लास्ट टाइम वो फिर से ट्राई करें। दिस टाइम द ट्रिक नियरली वर्कड। आफ्टर इमेजिनिंग द 82nd sheep jump over the fence, he was floating gently into the land of dreams. That was when his wife rolled out of bed and fell on the floor with a loud thud. The baby woke up and started crying again. Soon Mr. Fogg's aunt too came and asked, "Did you feel the earthquake?" Now, यहाँ पर फिर से जब मिस्टर फॉग ट्राई कर रहे थे सोने की और इस बार तो वर्क हो भी रहा था और वो 80 शिप्स काउंट भी कर चुके थे, और जैसे ही उन्होंने मतलब वो सब उन्हें ड्रीम्स भी आने लगे थे और वो धीरे धीरे उन्हें नींद भी आ रही थी, तो अचानक से उनकी जो वाइफ थी वो बेड से मतलब गिर गई जिस वजह से बेबी जग गया। और बाजू जो उनकी नेबर आंटी थी वो भी मतलब आ गए और वो पूछने लगे, वो नॉक करके पूछने लगे कि क्या आपने अर्थक्वेक फील किया। तो इस तरह से मिस्टर फॉग फिर से फेल हो गए और उनकी नींद बिगड़ गई। मिस्टर फॉग डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मिस्टर फॉग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि उन्हें अच्छी से और शांति से नींद आ जाए। He grabbed a pillow and went to the sofa in the sitting room and lay down there. अब मिस्टर फॉग ने क्या किया कि वो अपने पिलो और लेकर सोफा पर चले गए, अपने वो आगे हॉल में चले गए और वहाँ पर वो जाके लेट गए। Soon he fell asleep. When he woke up in the morning, he was quite sure that counting sheep
could not help anyone sleep. फिर उसके बाद वहाँ पर हॉल में जाने के बाद वहाँ पर वो सो गए और फिर जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें मतलब ये चीज़ श्योर हो जाता है कि काउंटिंग शीप जो है वो किसी को सोने में मदद नहीं होता है, हेल्पफुल नहीं होता है. Students, these are the new words of this chapter. So repeat the new words after me. Number 1, Mr. Wilberforce fog. Number 2, imagining. Number 3, fence. Number 4, ridged. Number 5, doze off. Number 6, trouble. Number 7, irritated. Number 8, counted. Number 9, shouted. Number 10, knocked. Number 11, awake. Number 12, forgotten. Number 13, thieves. Number 14, backyard. Number 15, firmly. Number 16, neighbor. Number 17, fighting. Number 18, loudly. Number 19, lived. Number 20, seemed. Number 21, floating. Number 22, gently. Number 23, earthquake. Number 24, grabbed. Students, I hope you have understood the chapter and enjoyed a lot. Thank you. Have a nice day.